Good morning students. Today we'll discuss the cyber safety part 2. Private browsing and anonymous browsing. First is the anonymous browsing allow user to view the website without revealing any personal information of the user like their IP address, machine location. This browsing lets user access website anonymously. It can be used a tool for government, journalist and everyday security conscious suffer. एनोनिमस ब्राउजिंग का मतलब होता है गुमनाम ब्राउजिंग, जिसको कोई देख ना सके, जिसको कोई चेक ना कर पाए. अलाउ यूजर टू व्यू द वेबसाइट विदाउट रिवीलिंग, पता चलना कि बिना पता चले एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर. ऐसी ब्राउजिंग जिसके अंदर ये पता ना चले कि यूजर का आईपी एड्रेस क्या है, मशीन टाइप क्या है, लोकेशन क्या है. ऐसी ब्राउजिंग को हम एनोनिमस ब्राउजिंग कहते हैं और इसका यूज मैक्सिमम गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट और एवरीडे सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है. देयर आर द अनदर टाइप ऑफ ब्राउजिंग इज द प्राइवेट ब्राउजिंग. एक दूसरी, पहले हमने एनोनिमस ब्राउजिंग की, अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट ब्राउजिंग की. There are other ways to use the internet without revealing your search history or sharing your data. हमारे पास एक अलग तरीका है जिसके अंदर हमें विदाउट रिवेलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डाटा, आपकी बिना सर्च हिस्ट्री और शेयरिंग ऑफ डाटा की इंफॉर्मेशन को बिना पता किए हम आपकी ब्राउजिंग कर सकते हैं. इस चीज़ को प्राइवेट ब्राउजिंग कहा जाता है कि हम प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करेंगे जिसके कारण हमारी सर्च हिस्ट्री और शेयरिंग ऑफ डाटा का पता नहीं चलेगा. देयर आर द सेवरल वे. फर्स्ट वी डिस्कस द फर्स्ट वे, इनकॉग्निटो ब्राउजिंग. It open up a version of browser that will not track your activity. It's particularly useful if you are entering sensitive data like bank detail into browser. You may also use the private browser or search engine. In this browsing, it will open a version of browser that will not track your activity. It is particularly useful if you are entering sensitive data. जब हम कोई भी sensitive data डालते हैं तब ये क्या करेगा, उस डाटा को कॉपी नहीं करता. It can minimize the risk of your information being saved to the computer. ये आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है. But this information is still visible to the server. ये सारी इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर तो अवेलेबल रहती है. यू मे आल्सो यूज द प्राइवेट ब्राउजर और सर्च इंजन DuckDuckGo. ध्यान से सुनिएगा, हम प्राइवेट ब्राउजर और प्राइवेट सर्च इंजन यूज कर सकते हैं जिसका एग्जाम्पल आपके पास है DuckDuckGo. It will open a version of the browser that will not track your activity. ये जो सॉफ्टवेयर, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ये आप ऐसा वर्जन है ब्राउजर का जो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर सकता. It is particularly useful if you are entering sensitive data. अगर हम सेंसिटिव डाटा डाल रहे हैं तो हम इस वर्जन का यूज कर सकते हैं. You may also use the private browser and search engine like DuckDuckGo. This is the name of search engine. This is the name of company. You may also use the private browsing. Next is the proxy, maximum use. Proxy work by acting a middleman between your computer and website you want to access. Now the tracking website will get the IP address and information that belong to the proxy site. ध्यान से समझिएगा. It acts as a middleman between system and website. Now if we tracking the website, we will get the IP address and information that belong to this proxy site, and so you are effectively getting the same content from another source without it getting to know your browsing detail. proxy क्या होता है कि कंप्यूटर और जो वेबसाइट है उसके बीच का माध्यम लगा लीजिए. जब कभी भी आप कोई भी डाटा लेंगे
कोई ट्रैकिंग कर रहा होगा तो उसको प्रॉक्सी का डाटा मिलेगा। मेन सिस्टम जहां वो डाटा जाके स्टोर हो रहा है वहां की इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी। एंड लास्ट इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN is a method used to add security and privacy to private and public network like Wi-Fi, hotspot and the internet। जब हम VPN का यूज करेंगे तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो वाईफाई और हॉटस्पॉट को, इंटरनेट को हम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Internet is a public platform. Mostly the site you visit, the thing you search on it, post on it on the social networking site are visible to public. But there must be some information like credit history, bank detail, your mail, which you do not want to make public. So you must to keep this information confidentially. So it's mean कि when we browse any network, when we browse any website, we have several information that must not be publicly. वो चीज़ें publicly नहीं होनी चाहिए। तो confidentiality of information ensure that only authorized user get access to the sensitive and protected data। जब हम confidentiality का मतलब क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन यूजर डाल रहा है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज पर्सन के पास हो, बाकी पब्लिकली उस चीज को ना देखा जा सके। योर कंप्यूटर सिस्टम और इन ए प्राइवेट नेटवर्क यू वुड सर्टेनली वांट टू क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड एंड इज नॉट पब्लिकली विजिबल। हम ये चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड हो और पब्लिकली दिखाई ना दे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंश्योर दैट ओनली ऑथराइज यूजर गेट द एक्सेस टू द सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टिव डाटा। कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होगा कि जो ऑथराइजेशन जिसको आपने दे रखा है, जिसको पासवर्ड दे रखे हैं, जिसको आपने हेड बना रखा है, सिर्फ वही उस डाटा को यूज कर सकते हैं, उस डाटा को देख सकते हैं। बाकी पब्लिकली उस डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है कि पब्लिकली उस डाटा को आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइबर क्राइम्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।